روزانہ سلطان صلاح الدین کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام جکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پیشے ور رقاصہ نہیں، یہ طوائف بھی نہیں، اس کو رقص سے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے، آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تھا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے اس سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کروں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص اور ناچ کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص یا عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکی جسے آپ اس ملبوس میں لائے ہیں، یہ بالکل ننگی ہے۔ عالی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں، یہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں، اپنا رقص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی، ناجی نے کھسیانی حالت میں کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر خراج تحسین پیش کروں کہ تم ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو، یا اس پر شاباشی دوں کہ تم نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے صرف بازیابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص میں پیشہ وارانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی ہی کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے کے اندر آنے کی اجازت دے دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کے جانباز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پراسرار اور خوشامدی لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ جکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے آس پاس اڑ رہی تھیں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا۔ مشالوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مطابق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے، وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے، پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی شاہراہ کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزہ تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے کے اندر گیا اور کہا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دو، میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ٹھیک ہے، لے جاؤ، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے باہر نکل گیا۔
थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिजों ने एक रक्कासा को उसके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे के हर तरफ मशालें रोशन थीं। रोशनी का इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था कि रात के वक्त मुहाफिज गिरद पेश में अच्छी तरह से देख सकें। रक्कासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। यही वो लड़की थी जो टोकरी में से निकली थी। वह जकोई थी। वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तो बासिकन था। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। जकोई ने बताया कि उसे अमीर मिस्र ने बुलवाया है। कमांडर ने उसे बताया कि यह उन अमीरों में से नहीं कि यह तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रात गुजारे। आप उनसे पूछ लें, मैं बिन बुलाए आने की जरूरत नहीं कर सकती। कमांडर ने पूछा, इनका बुलावा तुमको किसने दिया? सालार नाजी ने कहा कि तुम्हें अमीर मिस्र बुला रहे हैं। जकोई ने कहा, आप कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। अमीर मिस्र ने जवाब तलबी की तो तुम खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि अमीर मिस्र ने एक रक्कासा को अपने खेमे में बुलवाया है। वह अय्यूबी के किरदार से वाकिफ था। वह उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दुर्रे भी मारे जाएंगे। कमांडर सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसने ये हिम्मत की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के अंदर चला गया। अय्यूबी अंदर टहल रहे थे। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रक्कासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलवाया है। सलाहुद्दीन ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और जकोई को अंदर भेज दिया। सिपाहियों को तवक्को थी कि उनका अमीर इसको बाहर निकाल देगा। वह सब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के गरजदार आवाज़ सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाज़ आ रही थी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के अंदाज में टहल रहा था तो एक सिपाही ने कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक़ रखना जुर्म है? कमांडर ने कहा, हाँ, हुक्म सिर्फ मातहतों और कानून सिर्फ रियाया के लिए होता है। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। और कमांडर ने कहा, बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा तो हम पर झूठी पातशाही का रुआब जमाया जाता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन का जो बुत था वो टूट गया। उस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्यास था। पारशाही के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी न थी। वह अपने खेमे में बैठा मसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार ओरविस बैठा हुआ था। उसने कहा, जकोई को गए हुए बहुत वक्त हो गया है। मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। नाजी ने कहकहा लगाकर कहा, हमारा तीर गलत कब था? अगर गलत जाता भी तो अब तक हमारे पास आ जाता। ओरविस ने कहा, तुम ठीक कहते हो। जकोई इंसान के रूप में एक तिलिस्म मालूम होती है। ये लड़की हसीसन के साथ रही है, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी नहीं तोड़ सकती थी। नाजी ने कहा, मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हसीसन के कभी वहम व गुमान में भी न आए होंगे। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हलक से शराब उतारनी बाकी रह गई है। नाजी को बाहर आहट सुनाई दी। नाजी ने दूर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और सिपाही खड़े थे। उसने अंदर जाकर ओरविस से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी जकोई ने बुत को तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब जकोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे से बाहर निकली। नाजी के खेमे में जाने के बजाय वह दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जो सर से पांव तक एक ही लिबादे में छुपा हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में जकोई को पुकारा और वो उस आदमी के पास चली गई। वह उसको खेमे में ले गया। बहुत देर बाद वह उस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख किया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे की तरफ बाहर निकलकर देख चुका था कि जकोई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीटकर नाजी की जहनियत में ले आई। नाजी ने कहा, ओरविस, रात बहुत हो गई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। ओरविस ने कहा कि वो शायद अब आएगी भी नहीं। ऐसे हीरे को कोई शहजादा वापस नहीं करता, वो उसे अपने साथ ले जाएगा। तुमने उस पर भी गौर किया है? नाजी ने कहा, नहीं, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था।
ओरविस ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र जकोई के साथ शादी कर ले? इस सूरत में लड़की हमारे काम की भी नहीं रहेगी। नाजी ने कहा, वो है तो होशियार, मगर रक्कासा का क्या भरोसा। वह रक्कासा की बेटी है और तजुर्बाकार भी, धोखा भी दे सकती है। वह गहरी सोच में था कि जकोई खेमे में दाखिल हुई। उसने हंसकर कहा, अपने अमीर मिस्र का वजन करो, लाओ मेरा सोना, आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना। नाजी ने बेकरारी से कहा, पहले बताओ हुआ क्या? जकोई ने कहा, जो आप चाहते थे। आपको यह किसने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? उसने जमीन पर पांव मार कर कहा, वह इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसको हवा के झोंके उड़ाते फिरते हैं। ओरविस ने कहा, यह तुम्हारे हुस्न का जादू और जुबान की तिलिस्म ने उसे रेत बना दिया, वरना ये कमबख्त चट्टान है। जकोई ने कहा, हाँ चट्टान था, लेकिन अब रेतीला टीला भी नहीं। नाजी ने कहा, मेरे मुताल्लिक कोई बात हुई? जकोई ने कहा, हाँ, पूछ रहा था कि नाजी कैसा इंसान है। मैंने कहा कि मिस्र में अगर आपको किसी पर भरोसा करना चाहिए तो वह नाजी है। उसने कहा कि तुम किस तरह नाजी को जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं, हमारे घर गए थे और कह रहे थे कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हूँ, मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो मैं कूद जाऊँगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बाअस्मत लड़की हो। मैंने कहा, मैं आपकी लौंडी हूँ, आपका हर हुक्म सर आँखों पर। कहने लगा कि कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं बैठ गई। फिर वो पत्थर मोम बन गया और मैंने मोम को अपने सांचे में डाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगा, मैंने ज़िंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, यह गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलवाया, मैं खुद आई थी और फिर भी आऊँगी। जकोई ने हर बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह इसका जिस्म अरियां था। नाजी ने जोश मसरत से इसे अपने बाजू में ले लिया। ओरविस जकोई को हराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद देकर खेमे से निकल गया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस कहानी का अगला भाग जब हम अपलोड करें तो वो आप तक बआसानी पहुंच जाए।